Hello everyone, welcome back to the CT 360 degrees current affairs session. I welcome you all. I hope you are doing well and I also hope that your preparation is going well. So in this series we cover all the important current affairs that are part of your GA and ESI syllabus. So we here are particularly targeting RBI and NABARD examinations, but if you're preparing for any other examinations, then also these current affairs sessions, they are going to be important for you since we cover current affairs on day-to-day basis. So today we are covering it from 19th to 20th of February. All the important current affairs that can be asked in any competitive exams we will be covering here. So we here cover all the important sources like the PIB, the Business Standard, and the Hindu, so that you do not have to get into these. All you have to do is sit back, relax, and watch these videos and keep on revising so that you retain the information that we provide you. And I hope you are liking these videos. If you have any doubts, if you have any feedback, please comment down below. We will get back to you. All right. So with that, let's start. And today's quote is, the future, it depends on what you do today. So it depends upon आज आप आज क्या कर रहे हैं. That is आप आज क्या कर रहे हैं. So please keep on working hard for your dreams, and that is how you will achieve your dreams, right? So future, it depends on what you do today. So let's now see that what are the topics that we will be covering. So the first is the Sage Who Reimagined Hinduism. It is a book, so it comes under the books and authors. We have to do it, right? Then it is the Digital Trade Tech Corridor. It has been done between India and UAE, so it comes under GA agreements. We will be covering that. Then Northeast has gotten its first emergency facility in Assam. We will be covering that under the first in news. Then Vikram LLMS, we will be covering that under science and technology. I will be telling you what it is. And the last three topics, they are the ESI part of your syllabus. First is one plant per day, that comes under development and environmental issues. Then it is Meri Parampara, Meri Virasat. It comes under inclusive development and menstrual health. It comes under gender issues. So all these topics are important for you today. I hope you will like this video and I hope it will be helpful for you. So let's begin. The first is the Sage Who Reimagined Hinduism. So this is a book which has been released. Author इनके कौन है? It is Dr. Shashi Tharoor. That is why this becomes important. He is the member of parliament and it was released by Vice President C.P. Radhakrishnan. So who is the Vice President of India right now? It is C.P. Radhakrishnan, and the title of the book is The Sage Who Reimagined Hinduism. It is the life lessons and the legacy of Sri Narayan Guru. Sri Narayan Guru कौन थे? Sri Narayan Guru, he was a spiritual and educational reformer from Kerala. ठीक है, he worked for equality in Hinduism. उन्होंने हमेशा discrimination के against and casteism के against आवाज उठाई थी. What he wanted कि हम Hinduism को, मतलब spirituality को साथ लेके चले, Hinduism को ही egalitarian बनाए, उसको equal बनाए. So that is why this book, it has been written. All you have to remember is the author name and on whose teachings it has been written. It is Sri Narayan Guru. And who is the author? It is Dr. Shashi Tharoor, right? So it is the life lessons and legacy of Sri Narayan Guru and is appreciated for expanding the global reach of India's spiritual heritage. So this book actually में global reach आएगी Indian heritage से. So this is why this is important. आपके लिए for the exams only important the name of the author and किनके ऊपर ये लिखी गई है. All right, very easy. All right. Let's begin. The other is the India UAE Digital Trade Tech. This is our second news of the day. So, a technical partnership, a technological partnership between India and the UAE has been done, which connects the India's innovation and research from the IIT Madras, ठीक है? And it also connects it with what? It with the digital infrastructure और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दुबई, ठीक है? इन दोनों को ये कनेक्ट करेगी पार्टनरशिप एंड इट इज टर्म्ड एज इंडिया यूएई डिजिटल ट्रेड टेक. ये 2006 फरवरी में पार्टनरशिप की गई है. इसको हम बोल रहे हैं डिजिटल ट्रेड टेक कॉरिडोर, ठीक है? इसको क्या बोल रहे हैं हम? डिजिटल ट्रेड टेक कॉरिडोर. इट्स नॉट अ फिजिकल कॉरिडोर, एक
पावर पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में, बिटवीन इंडिया, आईआईटी मद्रास एंड वहां से दुबई द कॉमर्स सिटी, इन दोनों के बीच में है, ताकि हम इनोवेशन को, ट्रेड को हम और ज़्यादा बेहतर कर सके। तो हमें ट्रेड बेहतर करना है विद द हेल्प ऑफ एआई। ये बेसिकली क्रक्स निकलता है डिजिटल ट्रेड टेक कॉरिडोर का। इट इज़ आईआईटी मद्रास एंड दुबई कम्युनिटी। इट स्ट्रेंथन्स इंडिया यूएई कॉपरेशन अंडर कैपा। तो अंडर कैपा भी ये स्ट्रेंथन करता है। कैपा की वजह से इंडिया एंड यूएई का ट्रेड बहुत इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है। दैट वाज अ रीजन कि इसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी था, ताकि वो मॉडर्नाइज एंड एआई को इनकलकेट किया जा सके। व्हाट इज कैपा? कैपा इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये भी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही होता है, बट अनलाइक एफटीए जो कि सिर्फ टेरिफ की बात करता है, कैपा इट गोज बियॉन्ड दैट। इट टॉक्स अबाउट द सर्विसेज, द बिजनेस, द इन्वेस्टमेंट, द आईपीआर राइट्स, उन चीजों के बारे में ये बात करता है। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू नो अबाउट दिस स्लाइड इज डिजिटल ट्रेड टेक कॉरिडोर किन के बीच में है? आईआईटी मद्रास एंड दुबई कॉमर्स सिटी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्लाइड। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। नाउ दीज आर द फोकस एरियाज जिन पे ये जो हमारी पार्टनरशिप है वो काम करेगी। द फर्स्ट इज द अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर। सो बेसिकली इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इन एआई इनोवेशन सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इनका काम क्या होगा? बेसिकली दे विल मेक एआई टूल्स जो कि ट्रेड में हेल्प करेंगे। ठीक है, मे बी फॉर ऑटोमेशन दे विल हेल्प, मे बी फॉर लॉजिस्टिक्स दे विल हेल्प। तो इसका फर्स्ट फोकस एरिया ये रहेगा। देन द सेकेंड फोकस एरिया इज प्रमोशन ऑफ एआई स्टार्टअप्स। तो ये सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे एआई स्टार्टअप्स को। दैट कैन बी फिनटेक स्टार्टअप्स, दैट कैन बी ट्रेड टेक स्टार्टअप्स। वो जो स्टार्टअप्स होंगे जो ट्रेड में हेल्प करेंगे, उनको ये प्रमोट करेगा। देन इट इज बिल्डिंग अ ग्लोबल एआई हब। तो इंडिया एंड दुबई कलेक्टिवली ज्वाइंटली रिसर्च करके, ज्वाइंटली काम करके ये क्या बनाना चाहता है? एक ग्लोबल एआई हब बनाना चाहता है। एंड देन बूस्टिंग डिजिटल ट्रेड। एंड जो मेन इसका फोकस एरिया है वो क्या है? टू बूस्ट डिजिटल ट्रेड। हमें ट्रेड को एनहांस करने के लिए एआई हम इनकलकेट कर रहे हैं, एंड दैट इज द फोकस एरिया। मे बी पेमेंट्स के थ्रू, मे बी लॉजिस्टिक्स को स्मार्टली हैंडल करके, ऑल दोज थिंग्स दे विल बी डूइंग। सो दीज आर द फोर फोकस एरियाज। सिग्निफिकेंस, इट स्ट्रेंथन्स द पार्टनरशिप बिटवीन यूएई एंड इंडिया। एंड सेकेंड, इट एस्टैब्लिशेस India and UAE as front runners in AI powered trade environment. So I hope you are clear with this as well. ठीक है, all right, moving on. The third, it is the Northeast's first emergency facility, which has been इनॉग्रेटेड इन असम। ठीक है, असम में एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बना दी गई है ऑन मोरन बाईपास। ठीक है, सो ये असम में है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बेसिकली हुआ क्या है, जो एक नेशनल हाईवे है उसका कुछ एरिया, उसकी कुछ स्ट्रिप को एयर स्ट्रिप बना दिया गया है फॉर इमरजेंसी लैंडिंग्स। अगर कभी भी ज़रूरत होती है, मिलिट्री एंड सिविल दोनों एयरक्राफ्ट्स को लैंड करवाया जा सकता है। ऐसे इस हाईवे को बनाया गया है कि वो एयरक्राफ्ट्स का जो वेट है उसको हैंडल कर सके। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट को मिला है इन असम ऑन मोरन बाईपास, एंड दिस हाईवे कॉरिडोर इट हैज़ बीन मेड इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन एयरफोर्स। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए, ही लैंडेड ऑन दिस एयर स्ट्रिप ओनली। ठीक है, तो इसके ये सपोर्ट करता है लैंडिंग को भी, टेक ऑफ को भी, एंड बोथ मिलिट्री एंड सिविल एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक कैसे है? बिकॉज हम एक रिमोट एरिया को नेशनल डेवलपमेंट के साथ जोड़ रहे हैं, एंड एक डिजास्टर रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेंथन होता है। एज यू नो कि नॉर्थ ईस्ट इज प्रोन टू फ्लड्स, टू अर्थक्वेक्स। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमें क्विक इवैक्यूएशन के लिए या फिर सप्लाई के लिए हमें अब क्या है, ये जो हाईवे है ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो हेल्पफुल जो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट्स होंगे, दे कैन एक्चुअली लैंड देयर, एंड जो रिस्पॉन्स टीम है वो जल्दी से जल्दी जो विक्टिम्स हैं उनके पास पहुंच पाएंगी। तो इसके दो हाईलाइट्स हैं। इट इज स्ट्रेटेजिक एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ये स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस एज वेल। ऑल राइट, मूविंग ऑन। नाउ इट इज द विक्रम LLMs. सो व्हाट इज विक्रम? सो बेसिकली सर्वम एआई ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, सर्वम एआई है
है क्या, ये एक इंडिया का एआई स्टार्टअप है जो कि इंडियन लैंग्वेजेस पे काम करता है, एलएलएम बनाता है एंड ये इंडियन लैंग्वेजेस पे काम करता है, ठीक है। मेन फोकस एरिया उसका इंडियन लैंग्वेजेस है। एलएलएम क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, इट इज द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो बेसिकली एलएलएम क्या है, ये एक एआई टूल होता है जो कि अंडरस्टैंड एंड जनरेट करता है ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। सो बेसिकली इस सिस्टम में बहुत ही लार्ज डेटा डाला जाता है अबाउट लैंग्वेजेस, ठीक है। वो उसको रीड करता है, वो उसको अंडरस्टैंड करता है एंड देन वो उसको जनरेट करता है। वो देखता है कि अगले सेंटेंस में अगला वर्ड कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आप सबने यूज़ किया होगा, तो उसमें भी ऐसे ही होता है ना, वो एक एक वर्ड लिखता जाता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एलएलएम, ठीक है। इट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड स्वरम एआई ने लॉन्च किया है, दो किए हैं, टू इंडिजिनियस एलएलएम्स लॉन्च किए हैं, विक्रम 30B एंड विक्रम 105B। तो ये सबसे एडवांस्ड जो कि इंडिया में डोमेस्टिकली मेड एआई टूल्स हैं, एलएलएम मॉडल्स हैं, वो किए हैं अंडर द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ये लॉन्च हुए हैं। एंड ये किसने बनाए हैं, सर्वम एआई ने, ठीक है। इनको सिलेक्ट किया गया इसको बनाने के लिए एंड ये एक ओपन सोर्स एलएलएम है। व्हाट इज ओपन सोर्स एलएलएम, बेसिकली इनका सोर्स कोड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा साथ में। बेसिकली क्या होता है, दे आर ओपन, कि अगर कोई डेवलपर या कोई इनोवेटर या कोई भी और दे वांट टू एक्चुअली मॉडिफाई इट, कोई मॉडिफिकेशन बनाना करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं इनको, तो वो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन डू इट एवरीथिंग, यू कैन व्यू इट, यू कैन यूज इट, यू कैन इवन मॉडिफाई इट एंड इम्प्रूव इट। तो ये इनोवेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज अ ओपन सोर्स एलएलएम एंड ये डोमेस्टिकली इंडिया में इंडिजिनियसली मेड सबसे एडवांस्ड एलएलएम है आज तक, ठीक है। इट इज नेम्ड विक्रम टू ट्रिब्यूट विक्रम साराभाई। आप सबको पता है विक्रम साराभाई, ही वाज द फाउंडर ऑफ इसरो, उनके नाम पर इसको रखा गया है। द नेम्स आर विक्रम 30B एंड विक्रम 105B, ठीक है। इट इज ऑप्टिमाइज फॉर ऑल 22 लैंग्वेजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, ऑल ऑफ देम दे आर सपोर्टेड बाय दिस। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी इतनी ज़्यादा वास्ट लैंग्वेजेस है, ये उसको केटर कर रहे हैं, ठीक है। दे आर हेल्पिंग टू डेवलप दोज लैंग्वेजेस। देन इट इज़ द डाटा स्कैसिटी सॉल्यूशन। तो जो हमारी डेटा, बेसिकली जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हमें डेटा नहीं मिलता, डेटा सेट्स नहीं मिलते हैं, तो उसको भी ये ठीक कर रहे हैं एंड इट इज़ अ ओपन सोर्स रिलीज। तो अगर और जो डेवलपर्स हैं या एआई मॉडल बनाने वाले लोग हैं, दे कैन एक्चुअली हेल्प अस टू मेक इट बेटर, ठीक है। नाउ दिस वाज विक्रम एलएलएम। ऑल राइट, मूविंग ऑन, नाउ इट इज 1 प्लांट पर डे, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज 1 प्लांट पर डे। किसने किया था, ये शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ऑल राइट, तो ये शिवराज सिंह चौहान ने किया था, ही इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन्होंने एक प्लेज लिया था। प्लेज में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि मैं रोज एक सैपलिंग लगाऊंगा, रोज एक प्लांट करूंगा ट्री। उसका 5 years हैज़ बीन completed। उन्होंने वो रेजोल्यूशन कब लिया था, इन 2021, फेब 2021 में लिया था। 5 साल कंप्लीट हो गए हैं एंड आज तक 6000 प्लस सैपलिंग्स वो लगा चुके हैं, ठीक है। 6000 प्लस सैपलिंग्स इज अ ह्यूज नंबर, वो लगा चुके हैं, पर्सनली उन्होंने प्लांट किए हैं। तो 5 years इसके हमने सेलिब्रेट किए, ठीक है। एंड इसमें कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की गई। क्या मेजर अनाउंसमेंट्स की गई, द फर्स्ट इज कि कोई भी अब जो प्रोग्राम्स होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री और दैट विल बी रिलेटेड टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च या फिर किसी भी कृषि केंद्र का होगा या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होगा, दे विल बिगिन विद ट्री प्लांटेशन। कैसे स्टार्ट किया जाएगा उसको, ट्री प्लांटेशन के साथ स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, सबसे पहले ट्री प्लांटेशन की जाएगी। एंड सेकेंड, कॉन्वोकेशन में भी स्टूडेंट्स को प्लेज किया करवाया जाएगा लाइफ लॉन्ग प्लांटेशन। लाइफ लॉन्ग प्लांटेशन का मतलब वो प्लांट भी करेंगे एंड वो प्लांटेड ट्रीज को प्रोटेक्ट एंड नर्चर भी करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट। सो नाउ विजन क्या है, अब आगे इसका विजन है ट्रांसफॉर्म पर्सनल वाउ इनटू अ नेशनल वाइड ग्रीन मास मूवमेंट। वो इस पर्सनल वाउ को ही वॉन्ट्स कि मैं एक नेशनल वाइड मूवमेंट बना दूं, मैं इसको इतना ज़्यादा
बड़ा बना दूं कि वो नेशन वाइड हो जाए, ठीक है, एंड इट एक्चुअली बिकम्स अ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म, ठीक है, वो यूथ को इसमें लेके आना चाहते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद वन प्लांट पर डे। कुछ और चीजें हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं विच इज इंपॉर्टेंट। प्रपोज किसने किया था, इट इज किसने किया है, सॉरी, प्रपोज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसके कुछ इनिशिएटिव्स जो प्रपोज किए गए हैं, ये अभी सिर्फ प्रपोज्ड हैं, वो क्या है, रीप्लेस मोमेंटोज विद प्लांट अ ट्री एंड सेंड अ फोटो ट्रेडिशन। सो बेसिकली जो पुराने सोवेनियर्स देने का हमारा ट्रेडिशन है उसको खत्म करके दे वांट कि हम एक ट्री प्लांट करवाएंगे एंड उनको बोलेंगे कि पिक्चर क्लिक कीजिए, हमें सेंड कीजिए एज अ प्रूफ। लॉन्च ऑफ ट्री बैंक फॉर डोनेशंस एंड ऑर्गेनाइज प्लांटेशंस। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि डोनेशंस देने वाले तो इंडिया में बहुत हैं, लेकिन एक्चुअली में हाथ से काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो हम एक ट्री बैंक बनाएंगे जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं, एंड आपकी डोनेशन से क्या होगा, हम सैपलिंग्स को लगाएंगे, हम पिट्स डिग करेंगे, हम उनका नर्चर, उनका केयर करेंगे। एंड देन ही ऑल्सो हैज प्रपोज्ड अ नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली यू कैन रजिस्टर देयर, एंड आप अपने कोई भी बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर उस पर रजिस्टर करके कह सकते हैं कि हमारी तरफ से प्लांट कीजिए, ठीक है। दैट इज व्हाट ही हैज प्रपोज। एंड देन इट इज द मिस्ड कॉल सिस्टम टू मोबिलाइज वॉलंटियर्स। मिस्ड कॉल सिस्टम ये उन लोगों के लिए है कि आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं, एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स, इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव बनता है इनकरेज वॉलंटरी मास पार्टिसिपेशन, बिकॉज ही वॉन्ट्स की ईच एंड एवरी जो भी इंडिविजुअल है इन इंडिया, ही शुड बी अ शेयर होल्डर इन क्लाइमेट एक्शन। दैट इज वाई, ठीक है, मेक ट्री प्लांटेशन कल्चरल एंड सोशल हैबिट एंड पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन एनवायरमेंटल एक्शन। सो आई होप यू आर क्लियर विद द वन प्लांट पर डे एज वेल। ऑल राइट, वेरी वेरी इजी। मेरी परंपरा मेरी विरासत, दैट इज माई हेरिटेज, माई प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल पीपल। बेसिकली ये जो चीज़ है, दिस इज फॉर द ट्राइबल पीपल, जो रूरल ट्राइब्स में रहते हैं, उनका जो हेरिटेज है, उनका रिच लिविंग हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। दे वांट टू डिजिटलाइज इट, डिजिटल वे से इसको रिकॉर्ड करके, डॉक्यूमेंट करके उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। एक इवेंट हुआ था विच वाज अ डे लॉन्ग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मेरी परंपरा मेरी विरासत के ऊपर एक इवेंट हुआ था फरवरी 2026 में, दैट इज वाई वी आर रीडिंग इट। एंड थीम क्या था, इट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल हेरिटेज। ऑब्जेक्टिव, प्रिजर्व लिविंग डिजिटल हेरिटेज थ्रू स्ट्रक्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइजेशन। तो हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, जो भी इनका हेरिटेज में आता है, जो भी इनके कल्चर में आता है, वी वॉन्ट व्हाट, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट एंड प्रिजर्व इट, ताकि उस पर बाद में रिसर्च भी हो सके, पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली बन सके, एंड दैट आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी ये प्रिजर्व हो सके, ठीक है। तो ये कुछ फोकस एरियाज हैं जिन पे, ये 10 फोकस एरियाज हैं इन टोटल। आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए है, यू नीड नॉट टू मेमोराइज दिस। दैट इज नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड ओरल हेरिटेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज, जो इनका विजडम है, जो ओरल स्टोरीज हैं, जो मिथ्स हैं, वो इनको प्रिजर्व करेगा। फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रिजर्व करेंगे, म्यूजिक को, डांस को। फिर ये करेंगे कुजीन्स एंड फूड प्रैक्टिसेस को, कैसे वो कम्युनिटी में फूड बनाते थे, ठीक है, कैसे उनकी जो इंपॉर्टेंट रेसिपीज हैं उसको। फिर लैंग्वेजेस को करेंगे, then they will be also adding the natural environment in ecological practices, how they used to conserve and make the environment better. Then they will be covering the visual arts, which includes the paintings, the sculptures, तो सारा कुछ करेंगे। then the rituals and the festival ceremonies, celebrations, चाहे वो अच्छे habits हो, या for example wedding हो, या फिर in case of death हो, सारी ceremonies हो, rituals हो, वो करेंगे। then it is the literature, poetry, pose, and then it is built spaces, historical buildings, agricultural styles, and then institutions and eminent personalities को। so all they want कि ये सारे के सारे जितने भी 10 फोकस एरियाज हैं उनको प्रिजर्व कर लिया जाए। ओके, कुछ बैकग्राउंड समझते हैं अब। मेरी परंपरा मेरी विरासत। सो मेरी परंपरा मेरी विरासत, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था। मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दे वांटेड टू डिजिटली प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द ट्राइब्स इन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है।
तो ये सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम सॉन्ग्स को, आर्टिफैक्ट्स को ही हम प्रिजर्व करें, बल्कि एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिम देम वो हम सब प्रपोज कर पाए. एंड छत्तीसगढ़ इट बिकम्स द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट आफ्टर झारखंड. तो सबसे पहले इसको झारखंड ने इम्प्लीमेंट किया एंड सेकेंड इसको छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंट किया. इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछ लिया जाते हैं. सो छत्तीसगढ़ सेकेंड स्टेट टू डू इट, फर्स्ट वॉज झारखंड. ठीक है, तो मेरी परंपरा मेरी विरासत झारखंड ने इंप्लीमेंट किया सबसे पहले एंड सेकेंड कौन था? छत्तीसगढ़. ऑल राइट. Now a very landmark judgment it has come, menstrual health case. ठीक है, तो menstrual health has been recognized as a fundamental right. तो इसको एक fundamental right बना दिया गया है. It's no more just a scheme, एक social welfare की scheme नहीं है, but now it is your right and a right that is guaranteed by the Constitution of India, that is guaranteed by the Supreme Court of India. ठीक है, तो menstrual health को इन्होंने fundamental right बना दिया है. नबार्ड में लास्ट टाइम डीपीएसपी दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर आर्टिकल पूछ लिया गया था, आर्टिकल नंबर. दैट इज वाई मैं यहाँ पे ये लेके आई हूँ. आई डोंट नो आरबीआई में आएगा या नहीं, बट नबार्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है. दैट इट कम्स अंडर व्हाट? इट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी. तो अब मेंस्ट्रुअल हेल्थ इट इज पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट. इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 अंडर लाइफ एंड डिग्निटी. ठीक है, तो इट इज डिक्लेयर्ड अ मैटर ऑफ जेंडर इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस नॉट वेलफेयर. अगर हम लिंक्स की बात करें, आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी एंड 21 राइट टू एजुकेशन को भी लिंक करता है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21. अगर पूछा जाए इट कम्स अंडर व्हाट, यू हैव टू से आर्टिकल 21 दैट इज विच इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि पीरियड पॉवर्टी एक सच में स्ट्रक्चरल बैरियर है. ठीक है, जो कि गर्ल्स एक्चुअली में स्कूल जाना बंद कर देती हैं उसके बाद. इट्स एक्चुअली अ ह्यूज बैरियर. इसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ आया होगा. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, प्लीज go to the next slide where we will be practicing some MCQs. ठीक है, all right. So the first question is the book The Sage Who Reimagined Hinduism, The Life, Lessons and Legacy of Sri Narayan Guru is authored by whom? किसने author किया है? And what dimensions of Narayan Guru's legacy does it primarily highlight? So what do you think is the right answer? Read the options and what do you think is the right answer? Right, so it is B, that is Shashi Tharoor. His reinterpretation of spiritual traditions to promote social reform and universalism. ठीक है, यहाँ हमने ये पढ़ा था that it is by Shashi Tharoor and ये है The Life, Lessons and the Legacy of Sri Narayan Guru. तो आपको दो ही नाम यहाँ पे याद रखने हैं, that is Dr. Shashi Tharoor and Narayan Guru. I hope you are clear with first question. Second, the 2026 recognition of menstrual health as a fundamental right under Article 21 constitutionally expands the implementation of. तो किस चीज को ये implement करता है? Directive principles, welfare entitlement into statutory benefits, life and dignity, या फिर federal power, या फिर reservation policy under Article 15. Right, so it is option C, that is life and dignity, to include gender inclusive structural justice. So it is a fundamental right now. The Digital Trade Tech Corridor was launched between IIT Madras and which UAE entity? Which of this is correct? Right, so it is option C, that is Dubai Commerce City. Question number 4. The Northeast's first emergency landing facility has been developed in which of the following state? ये question आ सकता है, very much chances. So what do you think is the right answer? Right, so it is Assam. ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसे जब ऑप्शंस आते हैं ना तो यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज. सो प्लीज मेक श्योर कि आप मार्क कर लेते हैं. इट इज असम. Question number 5, which is last. मेरी परंपरा मेरी विरासत is an initiative of which ministry? किस का initiative है ये? Very easy question.
बहुत ईजी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई विल वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट, बिकॉज पार्टिसिपेट करने से आपका रिटेंशन रेट बढ़ता है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे आपको 110% याद रहेगा कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया था, सही था गलत था आपको सब याद रहेगा। So the proposed digital trade tech corridor between IIT Madras and Dubai Commerce City is best understood as, please read the options and please answer it. I will be waiting for your answers. So that was all for today. I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, and if you want the PDF of this सेशन देन इट विल बी अवेलेबल ऑन आर टेलीग्राम चैनल, प्लीज उसको जाके ज्वाइन कीजिए। और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वहां पे आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड द लिंक of that telegram channel is in the description box below. All right, so I will be back with another set of current affairs. Till then, please like and share this video. Thank you.